Hey guys, welcome to Be Educare. This side Surya sir, and here we'll talk in detail about the TISNET 2024, the Jan month GK SAR. As I told you before कि हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जहां ईच मंथ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम पिक करेंगे एंड देयर रिस्पेक्टिव आंसर्स विल डिस्कस. So guys, watch this particular video till the end, and yeah, do subscribe the channel and press the bell icon so you will get regular updates with respect to the TISNET 2024. Now, अगर आप GK का प्रिपरेशन कर रहे हो then guys, first remember one thing, for the TISNET, GK is a game changer. It also has this sectional cutoff, and to get maximum marks in the TISNET, then you have to grab maximum score in the GK part, and it includes the GK as well as the current affairs. So current affairs को लेकर कुछ important questions हम discuss करने वाले in this particular video. और guys, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को end तक देखना है, और end में मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, ठीक है, जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, एंड इवन यू कैन मेक योर इंडिविजुअल नोट्स, एंड लेटर ऑन आप इन नोट्स को रेफर करके आउट ऑफ 40 यू कैन इजीली स्कोर 30 प्लस मार्क्स. ओके, सो गाइज, मैक्सिमम मार्क्स अगर हमें अचीव करने हैं देन जीके पर हमें काफी अच्छा फोकस करना होगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वेरी फर्स्ट वन, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपरेशन येट देन वी हैव लॉन्च्ड द प्रिपरेशन टू सिलेक्शन बैच. Prepare at Be Educare and target the top business schools. So here you will get preparation for the TISNET, along with TISNET, the extemporary part also, and the personal interview also. If you have any doubts and queries in your mind, then call on 9702405379 or the respective numbers mentioned in the description box. You will get a new batch guaranteed, no mixing with other students, recording access till the exam, repeat coaching till the exam. So if you seated in first batch, after completion of it, you can again sit in the second batch without any cost. And there are a lot more features. So guys, for all these features, call on the respective numbers, and you can also join our classroom sessions at Ghatkopar, Dadar and Dombivli. So let's start the video. Very first one. First question with respect to the business GK point of view. Microsoft India announced the top 3 winning teams of the coding hackathon. There were IndusNet and the 2 other companies, and which were those? So guys, आपके options ये है आपके सामने, the TCS and Wipro, Infosys and Tech Mahindra and L&T Infotech, or even the HCL Technology and Wipro. Guys, यहाँ जो आंसर आने वाला है आपका, that is the TCS and Wipro. This one is the answer. Now let's discuss about this. So in January 2023, Microsoft India announced the top 3 winning teams of the coding hackathon. Shortlist based on their innovation and the impact were from the TCS first, Wipro and the IndusNet. जहाँ TCS के Ambarish Ganguly stood first using Azure Cognitive Services. So guys, Azure Cognitive Services क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है. This is nothing but the transcript audible speech into the readable searchable text. जो क्या करते हैं, यूजुअली जो आपके टेक्स्ट है इनको कन्वर्ट करते हैं टू लाइफ लाइक स्पीच फॉर द मोर इंटरफेसेस, and also the AI to design an agriculture hub that serves as a one-stop destination for the farmers. The second place, Wipro team of 2 created a next generation smart search solution, again using Azure Cognitive Search to show how to boost search operation and improve productivity, employee engagement and operational cost. Third place जो था, team of 5 developers from the IndusNet created a smart commercial vehicle tracking system using Azure IoT services. So Azure टेक्निक क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, कौन विनर था आपको वो ध्यान में रखना है. ओके, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. बंधन बैंक लॉन्च इट्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन फीचरिंग डैश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. सो गाइस, ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात हो रही है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ आंसर आने वाला है सौरव गांगुली. और बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये फर्स्ट टाइम हुए गाइस. सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां भी फर्स्ट आता है ड्यूरिंग ईच एकेडमिक ईयर, अगर आप 2023 की बात कर रहे हो देन इस 2023 में जितनी बार भी फर्स्ट अगर कोई अपॉइंट हुआ है, ठीक है, सो वो आपको ध्यान में रखना है कि वहां से मैक्सिमम चांसेस है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पिक किया जा सके. ओके, सो बंधन बैंक लॉन्च इट्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन फीचरिंग क्रिकेटर सौरव गांगुली दादा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. According to company, this was the first time that Bandhan Bank appointed a pan India brand ambassador. So question कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम बंधन बैंक ने किसे अपॉइंट किया उनके पैन इंडिया ब्रांड एम्बेसडर के लिए. सो आंसर इज सौरव गांगुली. द कैंपेन वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय लियो बर्नेट ऑकार्ड, which was brought in as the bank's creative agency in August 2022. The marketing campaign would be visible across TV, print, out of home, सिनेमा एंड द डिजिटल मीडिया. सो कुछ कंटेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मोस्टली फोकस करना है आपको जो उनके ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है. ठीक है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ये इनका
कैंपेन है। सो ये कैंपेन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, हु वाज सेलेक्टेड फॉर असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, असम वैभव। सो और भी जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, जस्ट लाइक असम सौरव एंड असम गौरव। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो 2023 में ये किसे मिला है? ये ऑप्शंस आर डॉक्टर शशिधर फुकन, विनय कुमार, डॉक्टर देवी प्रसाद या फिर तपन साकिया। सो आंसर इज डॉक्टर तपन साकिया फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैंसर ट्रीटमेंट। सो मैक्सिमम चांसेस है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछा जा सके। रेस्ट जो ऑप्शन है जस्ट लाइक डॉक्टर शशिधरन फुकान, इनको मिला है असम सौरव अवार्ड एंड दैट इज फॉर हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट द असम गौरव, देन ये मिला है धृतिमाला डेका, इनको पब्लिक सर्विस के लिए। सो आपको ऐसे कुछ पॉइंटर्स ध्यान में रखने। असम वैभव को लेकर कुछ पॉइंटर्स पूछ लिया, देन असम सौरव और असम गौरव, इनसे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस। द असम गवर्नमेंट सेलेक्टेड डॉक्टर तपन साकिया फॉर द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैंसर ट्रीटमेंट। एज पर द चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा, Saikia is one of the patrons of Deepshika Foundation and has rendered immense contribution towards generating awareness and early detection of cancer in Assam and also in the Northeast. So चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा। ओके, नेक्स्ट वन, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट Tertiary Education Report 2022, which country had the most educated population? So your options are either Canada, Ireland, Japan or United States. Although United States आप देखोगे, लेकिन ये guys maximum GDP वहाँ खर्च करते हैं, ठीक है, but answer is not the D1, the answer is your Canada. Okay, अब यहाँ guys काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं। हाई रैंक कंट्रीज भी अलग होती है और यहाँ हम बात कर रहे हैं टर्शरी एजुकेशन को लेकर। सो आपको ये ध्यान में रखना है। सो वहाँ आंसर आने वाला है कनाडा। अगर मैं बात करूँ कुछ स्टेट्स की, देन कनाडा स्टैंड एट फर्स्ट प्लेस 59.96, जापान 52.68, दे आफ्टर लग्जमबर्ग, ये मैक्सिमम जीडीपी अपनी खर्च करते हैं गाइस। नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा लग्जमबर्ग, जहां वो मैक्सिमम, अगर वो प्राइस की बात कर रहे हैं कुछ डॉलर्स में, देन लग्जमबर्ग को आपको ध्यान में रखना है, और अदरवाइज आंसर इज द कनाडा। साउथ कोरिया 50.71, दे आफ्टर इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड दी फिनलैंड, उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज यहाँ मेंशन किए गए। ओके, सो आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है कि भाई कनाडा का पूछ लिया, जापान भी वहाँ ऑप्शन दे दिया, आयरलैंड भी ऑप्शन दे दिया, हो सकता है यहाँ साउथ कोरिया का भी ऑप्शन आपको दे दे। ओके, सो ध्यान में रखना है कि ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर क्या है और क्यों ऐसे चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस एस्टैब्लिशिंग ₹101 करोड़ फंड मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष? सो गाइस आंसर भी आपका यही छुपा हुआ है, but first you have to see all the options. For improving livelihood of the tribal communities, for higher education and day-to-day needs of orphan children, for encouraging women entrepreneurs, for promoting tourism in the state. Guys, ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, उसके जो नोमेनक्लेचर होंगे गाइज, जो स्कीम का नाम होगा, दैट विल बी इन द हिंदी, राइट? और हिंदी लैंग्वेज से ही हम उस एक पर्टिकुलर वर्ड को एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर क्या है। अब आश्रय, आश्रय किसको मिलेगा? जिनके पास कोई प्लेस नहीं है आश्रय के लिए, राइट? सो ये सहायता हो गई। आश्रय मीन्स ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए एक हेल्पिंग हैंड हो गया। सो फॉर हायर एजुकेशन एंड डे टू डे नीड्स फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, दिस विल बी योर आंसर। रेस्ट आपको डिटेल्स पढ़ने पर करेक्ट आंसर फाइंड आउट तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे आप शॉर्टकट से भी ये देख सकते हो जो पर्टिकुलर स्कीम है उसमें जो वर्ड प्ले किया गया है उसका मीनिंग क्या है। सो आश्रय से हमें पता चलता है आश्रय किसको मिलेगा? ऑर्फन चिल्ड्रन को, राइट? क्योंकि इनके पास कोई आसरा नहीं है। नाउ द डिटेल्स। In a new year gift to about 6,000 orphan children in Himachal Pradesh, the state government in January 2023 announced establishing a 101 crore fund, Mukhyamantri Sukh Ashray Sahayata Kosh, for their higher education and day-to-day needs. Making announcement, यहाँ बहुत अच्छा काम किया गया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अब ये भी ध्यान में रखना है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमाचल प्रदेश के। एक और क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। Said that all the 40 Congress MLAs decided to give ₹1 lakh each from their first salary towards this fund, and more funds would be collected from industries under the corporate social responsibility. भाई बहुत अच्छा काम किया, 1 lakh from each MLA, और सारे MLA ऐसे ही काम करने चाहिए, right guys? Moving further, which international sports organization decided to introduce a transgender category from this year 2023? So options are
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, वर्ल्ड टेक्वांडो फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग। सो आंसर इज वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग। और इसके भी कुछ रूल्स है गाइस। एंड एट द बर्थ रूल will be used, which means a transgender boxer who is registered as a male at birth will be allowed to fight others who have also been registered as a male at birth, and those registered as female at birth will be allowed to fight others who have been registered as female at birth. So ये एक particular rule है। ओके अब यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि who is the president of World Boxing Council? Then the answer is Mauricio Suleiman. सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का पूछ लिया तो इनके प्रेसिडेंट कौन है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और आपका आंसर यहाँ बन जाएगा। ओके देखो गाइज, मोस्टली जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे फ्रेम होते हैं कि भाई लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, सारे डोमेन्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि किस किस पर्टिकुलर डोमेन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और उनके रिलेटेड ही आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अगेन फ्रेम होते हैं। भाई इस बार पूछ लिया वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग के लिए, सो उनके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया। अब ये प्रेसिडेंट कब अपॉइंट हुए, तो ये आपका हो गया स्टैटिक जीके का पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके आपको ऐसे ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन विच सिटी डिड एनटीपीसी लिमिटेड कमीशन द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट? अब ये तो बात आई कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहाँ है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सारे फैक्टर्स को लेकर। लाइक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फर्स्ट लोकेटेड कहाँ था, तो फर्स्ट उसका आंसर आएगा असम। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्लूइंग स्टेशन इन इंडिया कहाँ है, तो वो है ले इन लद्दाख। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नाउ द ऑप्शंस आइदर विजयवाड़ा, कोटा, इंदौर और सूरत। द आंसर इज द सूरत। अब आपको मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन, एंड द क्वेश्चन इज largest green ecosystem in India. Now, in 2023, state-owned power generator NTPC, National Thermal Power Corporation Limited commissioned the country's first green hydrogen blending project. Green hydrogen blending was started in piped natural gas PNG network of NTPC Kawas Township, Surat. The project is joint effort of NTPC and Gujarat Gas Limited. So, ये ध्यान में रखना है गाइस, गुजरात गैस लिमिटेड के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2022। नेक्स्ट वन, साइंटिस्ट फ्रॉम द नासा डिस्कवर्ड द अर्थ साइज प्लैनेट इन द हैबिटेबल जोन वेयर लिक्विड वाटर कुड पोटेंशियली एग्जिस्ट ऑन इट्स सरफेस। नेम दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अब गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ मेंशन किया है अर्थ साइज प्लैनेट। ठीक है, ये हमेशा आपको याद हो सकता है जहां वाटर कुड बी एग्जिस्ट। ओके सो आपके ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस एक जैसे ही है गाइस, TOI 700B C D ये पहले आइडेंटिफाई हो चुके हैं, एंड द आंसर इज TOI 700E। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है गाइस, द साइंटिस्ट फ्रॉम नासा डिस्कवर्ड अर्थ साइज प्लैनेट इन द हैबिटेबल जोन वेयर लिक्विड वाटर कुड पोटेंशियली एग्जिस्ट ऑन इट्स सरफेस। अब ये लिक्विड वाटर क्या है गाइस, ये आप जानते ही हो, रिवर है, पानी जहाँ पाया गया है। लिक्विड गैस क्या होता है, जो आपके वेपर्स है, ठीक है, वाटर वेपर्स। द साइंटिस्ट यूज नासा's transiting exoplanet survey satellite and identify an Earth-sized world called TOI 700E. The world is 90% Earth-size and likely rocky. Astronomers previously discovered 3 planets in the system called TOI B, C, D. पहले आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ एडिशनल टेस्ट ऑब्जर्वेशंस हो। टेस्ट यूजुअली टर्म्ड एज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट survey satellite. Okay, now next one, Dash partner with Open to provide a fully native digital current account journey for its customers including SMEs, small medium enterprises, freelancers, homepreneurs, influencers and more. So Open से ध्यान में रखना है कि ऑल इन वन जो डिजिटल अकाउंट है उसकी जो फैसिलिटी स्टार्ट की है वो कौन से बैंक ने स्टार्ट की है गाइस? ऑप्शंस आर एक्सिस बैंक, इंडसइंड, Kotak Mahindra, IDFC Bank. So answer is Axis Bank. In 2023, Axis Bank partnered with Open to provide a fully native digital current account journey for its customers, including small and medium enterprises, freelancers, homepreneurs, influencers, and more. This was the bank's first ever partnership with fintech player to launch a fully digital current account. और इससे क्या फायदा होने वाला है guys? Using this account, customers can avail 250 plus banking services and claim up to 50% cashback through Grab deals.
With this partnership, all existing Axis Bank account holders also got access to Open's all-in-one digital banking platform that is used by 30 lakh बिजनेसेस। बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, विच स्टेट किक्ड इटसेल्फ इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय टेकिंग 4500 पेनल्टी किक्स इन 12 आवर्स। सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गाइस, इससे रिलेटेड अगर आपको 2023 में कुछ एक नया दिख रहा है इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, देन आपको ध्यान में रखना है कि भाई उसके प्रीवियस कौन था वो भी हमें पता लगाना है। जैसे यहां बात कर रहे हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रखा है, देन द आंसर इज केरला। गाइज, इन जनवरी 2023 केरला किक्ड इटसेल्फ इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। कितनी पेनल्टी किक्स थी? 4500 इन 12 आवर्स। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मेड इट पॉसिबल फॉर द फुटबॉल क्रेजी स्टेट टू सेट द गिनीज रिकॉर्ड एट ड्रीम गोल पेनल्टी शूटआउट ऑर्गेनाइज एट पायनाड फुटबॉल स्टेडियम एट मंजेरी, एंड द प्रीवियस रिकॉर्ड वाज होल्ड बाय द जर्मनी, और उन्होंने किए थे 2500 पेनल्टी किक्स इन 12 आवर्स। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए रेडी है गाइस, आपको ये ध्यान में रखना है। मूविंग फर्दर, विच कंट्री बैक द एपियन वेज कैंडिडेसी टू बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गाइस, जब भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कोई भी एक पूछ लिया, अभी ये एपियन वे से पूछ लिया, दैट मीन्स ये कहाँ है, ये हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट कि स्विट्जरलैंड में है, स्पेन में है, फ्रांस है या इटली में है। द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट दी इटली। गाइज, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ है, वो भी इटली में है। देयर आर 58 साइट्स। इंडिया में कितने, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इंडिया हैज 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड विच वन इज द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? दी अहमदाबाद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ इफ द क्वेश्चन आस्क कि मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस पर्टिकुलर स्टेट में है, देन द आंसर इज नथिंग बट दी महाराष्ट्र। और कितनी साइट्स है गाइज यहाँ? देयर आर 5 साइट्स, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, राइट, ऐसे टोटल 5 साइट्स आर देयर। नाउ डिस्क्रिप्शन, Italy's Ministry of Culture backed the Appian Ways candidacy to become a UNESCO World Heritage Site, the first time such a bid has had national support in the country. The Appian Way is 2,300-year-old road connecting Rome to southeastern Italian city Brindisi. Guys, ये particular road है the distance of 550 kilometers long, ठीक है, जो कि जोड़ता है काफ़ी सारे इटालियन रीजन्स को लाइक लाजियो, कैंपेनिया, बिसिलिकाटा एंड पुगलिया एज वेल एज 12 प्रोविंसेस एंड सिटीज एंड 73 टाउन्स। सो ये जो पर्टिकुलर रोड है इसका जो डिस्टेंस है 550 किलोमीटर्स है गाइस। इट वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एंशियंट रोम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है? द एपियंस वे। नाउ नेक्स्ट वन, पद्म अवार्डी डॉक्टर तहमतौन इराक उडवाडिया एन इंडियन सर्जन passed away. He was known as, the options are father of Indian surgery, no, father of medicine in India, no, father of laparoscopic surgery, father of heart transplant. So the answer is father of laparoscopic surgery in India. And guys, not only this one, आपको ये भी ध्यान में रखना है, father of Indian surgery, everyone knows the answer is Shushruth, right? The father of medicine, Acharya Charak, and the father of हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया इज पनंजीपल्ली वेणुगोपाल। सो आपको ये सारे जो ऑप्शंस है गाइज ये ध्यान में रखने, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन। सो इन 2023 पद्म अवार्डी डॉक्टर तहमतन इराक उडवाडिया, एन इंडियन सर्जन एंड गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट, वाज नोन एज द फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया, ठीक है, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। कुछ डिटेल्स है गाइज वो हमें ध्यान में रखने, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट सर्जन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस लेप्रोस्कोपिक इन सर्जरी in 1972. So again the question can be framed from here. Who was the first surgeon in India to introduce the laparoscopy in surgery? ये भी आपको ध्यान में रखना है, okay? The first to perform laparoscopic surgery in the developing world in 1990. He was awarded the Padma Bhushan, the country's third highest civilian award, in 2017. So guys, जैसे कि हमने देखा, this is जो करंट अफेयर का क्वेश्चन, एंड द आफ्टर इससे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट सर्जन अगर पूछ लिया तो ये आ गया स्टैटिक जी के रिलेटेड, कब उनको अवार्ड मिला पद्म भूषण का, सो आंसर इज 2017। सो ये भी आपका जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया स्टैटिक जीके रिलेटेड। सो ऐसे ही आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस पिक करने हैं और उनके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस बनाने हैं, एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द आंसर्स, राइट। नेक्स्ट वन, जादूनामा, अ बुक रिलीज इन जनवरी 2023, इज ऑन विच राइटर लिरिसिस्ट। सो गाइज आंसर आपके इस पर्टिकुलर इमेज में छिपा हुआ है, गुलजार साहब है या फिर जावेद अख्तर साहब है, ठीक है, आप देख सकते हो इमेज किसका है,
जावेद अख्तर साहब का। दीज आर द ऑप्शंस, गुलजार, अमिताभ भट्टाचार्य, प्रसून जोशी, जावेद अख्तर। द आंसर इज जावेद अख्तर। एंड गाइस, एग्जाम में कोई इमेज नहीं मिलने वाला, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ जादूनामा, अ बुक रिटन ऑन वेटरन राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर बाय अरविंद मंदलोई। किसने लिखा है? अरविंद मंदलोई ने। वॉज रिलीज इन जनवरी 2023। द बुक इज लेबर ऑफ लव। Arvind included Akhtar's debates, speeches over the years. The book references a debate that Akhtar took part in when he was 17. Okay, now the Tripura government extended a special education program titled Saharsh to all government and aided school of the state. What does the program title encourage? Saharsh. Saharsh मतलब हर कोई साथ में हर जगह खुश है, जॉयफुल या फिर हैप्पी। तो अब हमें इससे अंदाजा लगाना है कि भाई हमारे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है, राइट। नाउ इट एनकरेजेस इंग्लिश मीडियम इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट। इट encourages social and emotional learning. It encourages girl student to study science. Encourages government schools to have private school standard. The answer is B1. It encourages social and emotional learning. In an effort to encourage social and emotional learning, the Tripura government introduced a special education program titled Saharsh. Saharsh was launched in August 2022 in 40 schools, और उसके बाद in 2023 सारे जितने भी schools हैं हर जगह ये extend कर दिया गया है, and that's why it is in news. Next one, which film won the best non-English language film at the Golden Globes? Either it's Argentina 1985 या फिर RRR. Guys, RRR को लेकर भी एक क्वेश्चन आ चुका है जिसने 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, right? So options are All Quiet on the Western Front, Germany; Close, Belgium; Decision to Leave, South Korea; Argentina 1985 from the Argentina. So guys, in January 2023, the Golden Globes SS Rajamouli's blockbuster RRR won the best original song for Natu Natu, one of the two categories it was nominated in. It missed out in best non-English language film, which was won by Argentina 1985, and these are the rest one who were the nominees, right? So best non-English language film कौन सी है वो भी आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। Piyush Goyal launched the Mark platform, the mentorship, advisory, assistance, resilience, and growth for. The options are as follows: foreign investors, the banking sector, women entrepreneurs, or the startups. So the answer is startups. So the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal लॉन्च द मार्क प्लेटफॉर्म। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से है, देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके, बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस सेक्टर, स्टेज एंड द फंक्शन। सो द मैच मेकिंग फेज ऑफ द पोर्टल, एक पोर्टल है विच वॉज लॉन्च। क्या करेगा गाइज? इट वुड अलाउड स्टार्टअप्स टू कनेक्ट विद द मेंटर्स, ताकि आपको वहाँ मेंटरशिप मिल सके एंड डिस्कस देयर मेंटरशिप नीड्स, राइट। विच कंट्री बिकम अ फुल्ली इंटीग्रेटेड EU member? So there were 27 EU member and now which one is 28th one? So ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। The options are Estonia, Croatia, Kosovo और Albania. The answer is nothing but the Croatia, okay. At the stroke of midnight on December 31, Croatia switched to the shared European currency, the euro, and removed dozens of border checkpoints and joined the world's largest passport-free travel area. Why? Because all these 28 countries are now the EU member. Croats are now among almost 420 million people who are free to roam its 27 member countries. भाई आराम से घूमो, कोई वीज़ा नहीं लगेगा, विदाउट पासपोर्ट, फॉर वर्क और लेजर, ठीक है। अब लेजर मतलब भाई आराम। Adopting the euro likewise offers Croatia the benefits stemming from deeper financial ties with currencies 19 other users and with the European Central Bank. Okay, so आपको बस इतना ध्यान में रखना है। Okay, there were 27, अब हो चुके 28. So ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि which one is the 28th EU member, और ऑप्शंस आपके सामने। Okay guys, next one. Which organization under the Ministry of Defense, Government of India, marked its 65th foundation day on January 1, 2023? The answer is DRDO, Defense Research and Development Organization. Now question might be asked, who is the chairman of DRDO? So आपको वो भी ध्यान में रखना है, SV कामत। देखो गाइज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो उनके चेयरमैन कौन है वो भी, और क्या इनिशियल स्टेप्स अभी देखे गए हैं वो भी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2023? तो ऑप्शंस आर युवा उत्सव नए भारत का, युवा नए भारत के, युवा डिजिटल भारत के, या फिर विकसित युवा विकसित भारत। गाइस विकसित कब होगा? जब विकास होने वाला है।
ठीक है, सो द आंसर इज विकसित युवा एंड विकसित भारत. राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट until the goal is reach. yes guys, अगर टेस्टनेट का प्रिपरेशन भी कर रहे हो बस ये लाइन याद में रख लो. ठीक है, हमें टेस्टनेट का प्रिपरेशन करना है. अभी जागो गाइस, अभी भी देर नहीं हुई है. स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. और प्रिपरेशन को लेकर कोई भी टेंशन है गाइस, डोंट वरी एट ऑल. जो मैंने आपको नंबर मेंशन किए बस उसके ऊपर कॉल करो, सारे डाउट्स आपके पूछो. यू विल गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स. ओके, डोंट वरी एट ऑल. सो इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे ऑन January 12th. सो नेशनल यूथ डे कब होता है? January 12th को. The birth anniversary of Swami Vivekanand. To honor one of the greatest philosophers and spiritual leader, this day is also known as the Yuva Divas. And what was the theme? Viksit Yuva, Viksit Bharat. Next one. Which Eastern African country was declared Ebola free? Recently it was in news. So guys, your options are Ethiopia, Uganda, Somalia or Kenya. The answer is Uganda. Now, Uganda ended a 42-day countdown to be declared Ebola free with no case reported in the period. Usually ये जो 42 days का जो period है guys, ये as per WHO है, that is 221 day incubation cycles of the virus without any new cases reported. 21 days के दो अलग अलग साइकिल होंगे और यहाँ अगर एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता है देन वो माना जाएगा कि भाई ये स्टेट अब फ्री हो चुका है. ठीक है. नाउ प्रोफेसर के अब्दुल गफर्स ऑटोबायोग्राफी नजान साक्षी वॉज रिलीज बाय आइदर महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर, कपिल देव और सौरव गांगुली. गाइज मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको ऐसे इमेज नहीं मिलने वाला है. ठीक है, द आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी. एंड द डिस्क्रिप्शन सेज इग्नो एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफर ऑटोबायोग्राफी नजान साक्षी मी एज द विटनेस was released by cricket legend Mahendra Singh Dhoni in 2023. The book was introduced by senior journalist T.A. Shafi. ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. द फर्स्ट कॉपी वॉज रिसीव्ड बाय मारवान एल मुल्ला, द CEO ऑफ दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA फ्रॉम MS धोनी. ओके, ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड कॉपीज ऑफ द बुक टू डिग्निटरीज including actor Tovino Thomas present at the occasion. The infamous disappearance of P. Rajan. Guys, काफ़ी फेमस रहा था ये केस, द P. Rajan केस. ये हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1976. क्या किया गया था पी राजन को? एक्चुअली इनको अनलॉफुली अरेस्ट किया गया था और उसके बाद इनकी जो डेथ है वो कस्टडी में भी हो चुकी थी. ठीक है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द कोझिकोडे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इन 1976 इज वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ दैट प्रोफेसर गफर नरेट्स इन द बुक फ्रॉम हिज प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, सो इसका भी नरेशन यहाँ मेंशन किया गया है. नाउ next one, which state assembly passed a bill making the local language paper compulsory for candidates to pass the competitive exams for post in the state government? So local language को लेकर काफी कुछ डिस्कस किया गया है in national education policy 2020 and even the central universities, जितने भी central universities हैं in India, all are accepting the regional languages also. There are 13 different languages. So now which particular state, इन्होंने एक पर्टिकुलर बिल पास किया है कि भाई जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए अगर आपको भाई स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब चाहिए. देन द आंसर इज द तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु असेंबली पास्ड अ बिल मेकिंग द तमिल पेपर कंपलसरी फॉर कैंडिडेट्स टू पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. द बिल वॉज टेबल टू अमेंड द तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्ट 2016. एज पर द चेंजेस, इवन इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइड एंड एक्वायर्ड द जॉब, अगर आप क्वालिफाइड भी हो, जॉब मिल रहा है, ही और शी शुड पास द तमिल पेपर within 2 years of acquiring the job. आपको तमिल पेपर देना ही होगा. ओके, सो दिस इज कंपल्सरी. सो गाइज, आपको क्या लगता है रीजनल लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर तमिल पेपर कंपलसरी होता है देन अदर देन स्टेट्स के जो कैंडिडेट है क्या वो ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. और गाइज, जितने भी यहाँ मैंने आपको क्वेश्चंस मेंशन किए हैं इनके नोट्स बना लेने हैं और एल्स कुछ नहीं करना गाइस, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को देख लो. इस प्लेलिस्ट में सारे 12 वीडियोस आने वाले हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू दी स्टैटिक जीके पार्ट. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. जो भी आपके डाउट्स है आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन. एंड यस गाइस, वांट अ प्रिपरेशन, you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation. And in case you are pan India student, you can interact live with us. So call on 9702405379 or call on our master number 8383818888. Don't forget to download our app to get the free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.